وزیر اطلاعات پرویز رشید امجد صابری کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت پر امجد صابری صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے امجد صابری صاحب کے افسوسناک، المناک، قاتلانہ حملے کے بعد اور ان کی زندگی سے گزر جانے کے بعد ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے بچوں کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو امجد صابری صاحب سے محرومی کا تلافی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو ایک والد محترم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں تعلیم دلا سکتے ہیں، ان کی پرورش کر سکتے ہیں، اس میں وہ پوری مدد کریں گے۔ لہذا اپنے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم مکمل ہو سکے، وہ پاکستان میں اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں، اور والد سے محرومی کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے 1 کروڑ روپے کا چیک ان کی بیگم صاحبہ کے نام میرے ذریعے سے بھجوایا ہے، جو ان کے خاندان کے، ان کے بھائی صاحب کے، ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ عدت میں ہیں۔ یہ امدادی رقم اس نقصان کا تلافی تو نہیں کر سکتی جو بچوں کو ایک والد کی سے محرومی کی شکل میں ملا ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ ان کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ والد سے محرومی کے بعد اپنی معمول کی زندگی صرف وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ نہ بننے پائے، اور وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں، خاندان کی کفالت کر سکیں، والد کا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ آمین اللہ۔ اچھا پرویز رشید صاحب، اس وقت جو پاکستان میں صورتحال چل رہی، خاص طور پہ سریل احمد کی جو خبر تھی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور کئی پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگوں کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا کہ افواج پاکستان کی طرف سے ان کو خاص میسج دیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انگلیاں اٹھانے والوں میں ایک تو عمران خان صاحب ہیں اور ایک اعتزاز احسن صاحب ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب دونوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود ہے، کوئی شہادت موجود ہے، کوئی دستاویز موجود ہے، تو دونوں حضرات کو الزام لگانے کی بجائے عدالت میں چل کے اسے پیش کر دینا چاہیے، یا جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں جو تحقیقات کرتی ہیں، تفتیش کرتی ہیں، ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اور اعتزاز احسن صاحب کو، عمران خان صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس اجلاس کے بارے میں وہ ہمارے بارے میں انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، اس اجلاس میں اعتزاز احسن کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ لہٰذا ان کی انگلی صرف ہماری طرف کیوں اٹھتی ہے، باقی 2 لوگ جن کا باقی 2 جماعتوں سے تعلق ہے، ان کی طرف ان کی انگلی کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ میرا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بھی انہیں دینا چاہیے۔ اچھا، چودھری نثار نے 3-4 دن ایک کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ تحقیقات مکمل ہو کے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ 3-4 دن بلکہ 10-12 دن گزر گئے، تو اب تک اس متعلق رپورٹ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ جب تحقیقات مکمل ہو جائیں گی اور نشاندہی ہو جائے گی کہ کون ہے جس نے اپنے حلف کی وفاداری کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ دھرنا ہوگا یا دھرم سپا ہوگا، کیا ہوگا، ذرا یہ بتا دیں تھوڑا۔ دیکھیے، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور پاکستان میں
1951 से यानी 1951 से अक्टूबर का महीना जो है वो वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ महल्लाती साजिशों के आगाज़ का है। 1951 से आपको याद है कि लियाकत अली ख़ान साहब जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करने के लिए मुक्का बनाया था उन्होंने कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, लियाकत अली ख़ान साहब ने। और जब वो मुक्का लियाकत बाग में दिखा रहे थे, पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद का मुक्का दिखा रहे थे जब, तो उन्हें गोली मार दी गई थी। वो भी अक्टूबर का महीना था। तो अक्टूबर 1951 से अक्टूबर 2016 तक, 2016 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में महल्लाती साजिशें पाकिस्तान में वज़राए आज़म के खिलाफ की जाती रही हैं। लियाकत अली खान साहब को गोली मारी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस पे अक्टूबर में हमला किया गया था कराची में, आपको इल्म होगा, जिसमें बेतहाशा मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। तो ये, और अक्टूबर 99 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी साजिश हुई थी। तो ये अक्टूबर 1951 से जो सिलसिला शुरू हुआ था महल्लाती साजिशों का वज़राए आज़म के खिलाफ, उन्हें फांसी दे देना, उन्हें सड़क पर खड़े होकर गोली मार देना, उनका तख्ता उल्टने करना, इमरान खान साहब उसका हिस्सा है। अभी तक नादिर शाही सियासत करते हैं। आपको याद होगा कि नादिर शाही की सियासत एक इस्तिलाह है जो इस्तेमाल की जाती है। 18वीं सदी में नादिर शाह साहब हमले किया करते थे और हुकूमत पर कब्जा करते होते थे, हमलों के जरिए हुकूमतों पर कब्जा करना, तो उसको नादिर शाही सियासत कहते हैं। मेलाती जो साजिशें हैं उनका ताना बाना तो कहीं मिलता होगा, और उनका भी जिक्र करें कि कहाँ मिलते हैं उनके ताने बाने जो मेलाती साजिशें होती हैं सिविलियन हुकूमतों के खिलाफ। देखिए, ये महलाती साजिशों की सियासत के ताने बाने कहाँ मिलते हैं? जो सी पैक को रोकना चाहते हैं वहाँ पे मिलते हैं। जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो ख़त्म हो रही है उसको दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं वहाँ पे मिलते हैं महलाती साजिशों के ताने बाने। जो पाकिस्तान की मईशत 2013 में डूब रही थी और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने के धमकियां दी जा रही थी, और आज जो पाकिस्तान की मईशत फलने फूलने लगी है और दुनिया भर पाकिस्तान की मईशत को तेज़ रफ्तार तरक्की की मईशत गर्दानते हैं, उसको रोकने के ताने बाने कहाँ मिल सकते हैं? ज़ाहिर है कि कोई दोस्त तो ये से तो नहीं मिल सकते, किसी पाकिस्तानी मुहिब वतन से तो नहीं मिल सकते, उनसे मिल सकते हैं जो पाकिस्तान का ना इस्तेहकाम चाहते हैं ना पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, उनके साथ ताने बाने मिलते हैं। आपके पुराने दोस्त हैं शेख रशीद, वो ये कहते हैं ताकत से ही होगा, रुकेगा जी, ताकत से ही रुकेगा ये धरना, या इसके लिए मजीद कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि सियासी 2 नवंबर को लाखों की तादाद में जो आ रहे हैं लोग, ताकत से ही रोकेंगे उन्हें, या आप रोकेंगे जो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं? और नेशनल एक्शन प्लान में उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर इस सवाल को कंटिन्यू कर देता हूँ। वो इमरान खान, देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो दारुल हुकूमत में मामूल की ज़िंदगी जो है उसको बरकरार रखे। इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगियों में खलल ना पड़ने दिया जाए, और अगर कोई हमारी ज़िंदगी में खलल डालता है तो उसको रोका जाए। पाकिस्तान में जो भी कवानीन दस्तयाब हैं उन कवानीन के ज़रिए इस्लामाबाद में सरकार के कामों में मुदाखलत करने वालों को रोका जाएगा कवानीन के ज़रिए। आप कैसे देखते हैं? अब मुझे समझ नहीं आई, मेरे कान में आपकी आवाज़ आ रही है। एक मिनट अजीत भाई को पूछने। मेरा सवाल है परवेज साहब, जरा मैं आपको बैठ पे हूँ, आप पूछो। आपने अक्टूबर की बात की और नवंबर में आर्मी चीफ का जो मियाद मुद्दत है वो पूरी होनी है। नवंबर पे जरा आ जाए, धरना भी नवंबर में है, आर्मी चीफ भी नवंबर में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर को तलब किया है। जरा नवंबर की बात हो जाए।
देखिए, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिसेस जारी किए हैं और नोटिसेस जो हैं वो इमरान खान साहब को भी जारी हुए हैं। सिर्फ एक फरीक को नहीं, सब फरीकों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और वो उस नोटिस के जारी होने पे खुशी भी महसूस करते हैं। उन्होंने उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया, जो नोटिस उन्हें भी जारी हो चुका है। वज़ीर आज़म ने भी उस नोटिस का खैर मकदम किया है। हम अदालत में जाएंगे ताकि इमरान खान साहब का झूठ जो है उसको बेनकाब करने में हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया है। हमने उसका खैर मकदम किया है और इमरान खान साहब जो रोज़ मुतालबा करते थे, उसके लिए जब एक प्लेटफॉर्म 2 नवंबर को अपना काम शुरू कर रहा है, 1 नवंबर से अपना काम शुरू कर रहा है और काम शुरू कर दिया है, 1 नवंबर उसकी दूसरी स्टेज होगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब के धरने का कोई जवाब नहीं रह जाता। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद है, इमरान खान साहब को अगर पाकिस्तान की सबसे आला अदालत पर एतमाद है, तो फिर उन्हें उस अदालत के फैसले का उसी तरह इंतज़ार करना चाहिए जिस तरह उस अदालत के फैसले का इंतज़ार हम कर रहे हैं। अगर अदालत हमारे हक में फैसला करेगी और इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को गलत करार दे देगी, तो हम इमरान खान साहब से ये मुतालबा नहीं करेंगे कि वो हमसे माफ़ी मांगें, लेकिन सिर्फ उनसे ये ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का जो 5 साल से वो वक़्त ज़ाया करते चले आ रहे हैं, उस पे अवाम से शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर कर दें। लेकिन अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम एक सेकंड भी उस फैसले को तस्लीम करने के रास्ते में हाइल नहीं होंगे। लेकिन फैसला कानून की अदालत में होना चाहिए। सड़कों पर होने वाले फैसले पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। सड़कों पर इंतशार की, फितना की, फसाद की सियासत के खात्मे के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलके मुकाबला करेंगे। नहीं मिला इनके कातिलों की गिरफ्तारी के हवाले से वफाकी और सिंध हुकूमत पर क्या कर रही है? देखिए, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जो तहकीक होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, वो जारी है। ज़्यादा तफसील अगर सूबाई हुकूमत के कोई नुमाइंदे हों तो वो ज़्यादा बता सकेंगे कि उनके पास मालूमात मौजूद होंगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस तरह बहुत से कातिल जो हैं कराची में गिरफ्तार हुए और बड़े बड़े जराइम जो कराची में हुए थे वो बेनकाब होने शुरू हुए हैं, उनके मुल्ज़िमों तक कानून का हाथ पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह ताला साबरी साहब के कातिलों तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा। आज जो है वो बड़ी गाला में इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई माहौल बनने लगता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले शुरू हो जाते हैं। इस पर आप किस तरह रहना? जब भी इस्लामाबाद पर यलगार का कोई मंसूबा इमरान खान साहब बनाते हैं तो दूसरी तरफ से भी वो गोलाबारी हम पर शुरू हो जाती है। तो अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान की कोई हमदर्दी है तो उन्हें जब दुश्मन गोलाबारी कर रहा है तो अपनी तोपें फिर उन्हें खामोश करनी चाहिए। सर एक सवाल यार मैं शेख नहीं हूँ, वो दूसरा शेख है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरे नाम के साथ कोई शेख नहीं लिखा हुआ। शेख उसको कहते हैं जो शेखियां मारते हैं। करना चाह रहा हूँ मैं कि एमक्यू साहब के खिलाफ या लंदन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रेंजर उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है, जैसा कि अल्ताफ हुसैन ने बयान किया, तो आप बैन क्यों नहीं लगाती, क्लियर क्यों नहीं करती? देखिए, कानून का अपना रास्ता होता है, आपको कानून के जरिए ही काम को करना होता है। जो कवानीन मुतालबा करते हैं, जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक कानून जो है उसने अपने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। किसी एक फर्द की जुर्म जो है उसकी सज़ा इज्तिमाई तौर पर पूरे गांव को नहीं दी जाती। और इसी तरीके से
सियासत में भी किसी एक फर्द के गुनाह की सज़ा पूरी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। आप मुझसे अगर ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान और कराची के करोड़ों लोग अपने वोट के ज़रिए जिस जमात को मुंतखब करते हैं उस जमात पर मैं जाबराना तौर पर कोई पाबंदी लगा दूं तो ये भी इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। पाकिस्तान के अवाम को मौका मिलेगा, 2018 के इंतखाबात आएंगे, कराची के लोग समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो जिस जमात को मुंतखब करना चाहेंगे वो हम फैसला तस्लीम करेंगे। लेकिन एक फ़र्द के जुर्म की सज़ा या चंद अफराद के जुर्म की सज़ा उन चंद अफराद को मिलनी चाहिए, पूरी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रिया आप लोग। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कराची में मौजूद हैं। अमजद साबरी के अहलखाना से उन्होंने मुलाकात की है और उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म ने वादा किया था इमदाद देने का और वो चेक आज अहलखाना को देने आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ सियासी मामलात पर भी बात की। उनका यह कहना था कि हुकूमत पर उंगलियां उठाने वालों में इमरान खान और एतजाज़ अहसन शामिल हैं।